हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हो और रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि अभी हिंदी और इंग्लिश के पैसेज आ रहे हैं रेगुलरली मेरे। और ये सब अभी रिसेंट का जो पेपर हुआ है उसी से आ रहा है। ये भी अभी आपका जो अगस्त 2023 में पेपर हुआ है उसी का इंग्लिश पैसेज है, पेपर 2 का। तो आइए देखते हैं कि क्या है और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसके 136 से लेके 143 तक का क्वेश्चन है। पहले एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। थोड़ा पैसेज बड़ा है पैसेज, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पैसेज से ही रिलेटेड हैं, तो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पैसेज पढ़े इसके सॉल्व नहीं होंगे। तो आप पैसेज पढ़ने की आदत डालिए और ताकि टाइम जो है आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो सके। क्योंकि भी सीटेट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन आते हुए भी हम उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते और क्वेश्चन छूट जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रीडिंग की आदत डालिए। तो आइए देखते हैं। रीच आउट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रन्स वीक लॉन्ग समर कैंप्स designed to give young people the skills to be the leaders of the future. The camps help to create confident young people who wish to improve not only themselves but the world around them. Varying in age them 12 to 17, young people come to attend the camps in Canada and the USA from across the world. They spend their time learning leadership skills, considering and discussing important issues such as pollution and health, and helping in the local community. They also meet many other people who have the same interests and beliefs, and frequently make friendships that will last a lifetime. There is no average day at the camp, and changes are made to the timetable, which is handed out daily to allow room for exciting events as they come up. However, camp members generally get up at 7 a.m. and once they have eaten breakfast, start their day with outdoor games to get them warmed up for busy day ahead. There are workshops in the morning on skills such as public speaking, and then there is an hour for lunch at noon. For 1 hour in the afternoon, camp members have the opportunity to select from various activities that include dancing, yoga, basketball, and songwriting. During the time at camp, there is a day known as Action Day. This is when small groups go out with the adult group leader to work with organization in the neighborhood. Reach out. This can involve organizations dealing with housing, journalism, healthcare, or the environment. To name just a few, evenings are spent watching documentary films or listening to guest speakers. The aim is to encourage the young people to go out and make the world a better place. तो आप हमने पढ़ लिया ये पैसेज। अब उसके बाद देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Reach out camps are week-long summer camps that are organized all across the world. दूसरा ऑप्शन है young people in the age group of 12 to 17 years attend these camps. तीसरा है these young people come to learn leadership skills. तो हमने क्या देखा, पहले ही देखा, पहले ही पैरा में आप देखिए कि रीच आउट जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है दैट रन्स week long summer camp designed to give young people the skills to be leaders of future. एज जो है 12 to 17 ईयर्स एज वालों के लिए है। और ये पीपल्स कम टू अटेंड द कैंप्स इन कनाडा एंड द USA फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 2 आपका ABC तीनों ऑप्शन सही है। ABC आर ऑल करेक्ट। उसके बाद है लास्ट दूसरा क्वेश्चन, वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दिस कैंप्स। पहला ऑप्शन है टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, फॉर फन एंड फ्रेंडशिप, टू वाइल अवे देयर टाइम,
to improve their leadership skills only. To improve themselves and the world around them. फर्स्ट ऑप्शन। चौथा लीडरशिप स्किल्स ओनली हो गया ना, तो ओनली नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिपेयर देमसेल्फ एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी ग्रे हेड द यंग पीपल। पहला है ईट अ हैवी ब्रेकफास्ट, दूसरा गेट अप अर्ली एट 7 AM, पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स, अटेंड वर्कशॉप्स। तो देखिए यहाँ पे इस पैरा में है कि जो है दे हैव ईटन ब्रेकफास्ट, स्टार्ट देयर डे विथ आउटडोर गेम टू गेट देम वार्म्ड अप फॉर बिजी डे अहेड। तो आउटडोर गेम जो है वो करते हैं, ठीक। आपका ये थर्ड ऑप्शन, पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैम मेंबर्स नॉट सेलेक्ट। नॉट सेलेक्ट है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नॉट सेलेक्ट है। योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, बास्केटबॉल एंड सॉन्ग राइटिंग, डांसिंग एंड योगा, और चौथा है बास्केटबॉल एंड डांसिंग। आप ध्यान से देखेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग जो है मॉर्निंग में ही है, आफ्टरनून में नहीं है। बाकी सब आफ्टरनून में है। आपको दिखा देते हैं लास्ट लाइन, देखिए यहाँ पे, डांसिंग, योगा, बास्केटबॉल एंड सॉन्ग राइटिंग, ये आपके जो है आफ्टरनून में है। और आपका पब्लिक स्पीकिंग ये है, देखिए, ये जो है ये मॉर्निंग में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैम्प्स आर जस्टिफिएबली नेम्ड रीच आउट बिकॉज यंग पीपल फाइंड इट एक्साइटिंग टू रीच द कैंपिंग साइट। दूसरा ऑप्शन, मेंबर्स आर इनकरेज टू कोलैबोरेट विथ नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा, दे आर एक्शन पैक्ड थ्रू आउट द डे। चौथा, यंग पीपल वर्क अंडर ग्रुप लीडर्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा, रीच आउट नाम क्यों है। यंग पीपल फाइंड इट एक्साइटिंग टू रीच द कैंपिंग साइट, नहीं। मेंबर्स आर इनकरेज टू कोलैबोरेट विथ नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है, दिस इज व्हेन स्मॉल ग्रुप्स गो आउट विथ एन एडल्ट ग्रुप लीडर टू वर्क विथ ऑर्गेनाइजेशन इन द नेबरहुड, रीच आउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 7 days एट द कैंप आर, पहला एक्शन डेज, दूसरा प्लान्ड इन अ वे टू कोलैबोरेट विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा टायरिंग एट एवरेज, चौथा नॉट द सेम रूटीन वाइज। तो ऑप्शन सेकेंड, प्लान्ड इन अ वे टू कोलैबोरेट विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन। 142 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दे आल्सो मीट मैनी अदर पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीव। तो आल्सो आपका एडवर्ब होता है, आपको पता ही है। तो एडवर्ब पहला दूसरा दोनों ऑप्शन है। इंटरेस्ट जो है वो नाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी। कॉन्फिडेंट, साई और एवरेज का आपको पता करना है। कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंस आपका है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो किसी चीज़ को बोल्डली हैंडल करना। शाई मतलब शर्मीले स्वभाव के। एवरेज मतलब नॉर्मल उसमें। तो इसका आपको कॉन्फिडेंट का अपोजिट है साई, ठीक है। तो एवरेज का अपोजिट होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे। साथ ही और भी आप अपने पैसेजेस के जो है वो करते रहिए प्रैक्टिस, और एग्ज़ाम में लगे रहिए। अभी तो आपके पास टाइम है और अभी भी शुरू करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कोशिश में लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी आपको अभी जो हम वीडियोज़ डालेंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए राधे राधे।